नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मीन्स लाइक अगर आपने देखा होगा अगर आप एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हो फॉर राइटिंग एनी डॉक्यूमेंट, समटाइम्स you have to apply italic, bold and change the style of the font, or you can say size and color of the text. These all are the text formatting tags. In HTML you can do all such kind of things similar to MS Word with the help of following tags. So firstly is it to make any text italic we have a tag like I tag, that is called italic tag. How to write? Just opening angle bracket, then the tag name, that is I, then the closing tag. In between the closing angle bracket, whatever you will write will apply the italic style to that particular text. Then after, to close that particular text we have to put angle bracket, then forward slash, then I, then closing angle bracket. Anything between the opening and closing tag will act as a in italic, will represent as in italic style like this. Now for bold we have opening tag, that is B tag, and the closing tag. Anything written between these two tags is comes out to be in bold style. Similarly we have another tag that is called pre tag, which is pre-formatted text, and it will appear like this on the web browser, or you can say on the web page. Next is strong tag. Strong tag is almost similar with the bold tag. It highlights the text like in bold. Next is address tag. Whenever you have to apply address or to write address of your website or your company for which you are designing the web pages, you can use address tag to highlight that particular address. For citations purpose, we have a special tag that is called cite tag, with the help of which we can write citations in this format. Next is code tag. Code tag is used to represent source code, to highlight the source code. So the source code is written like this. This is the output of all the tags, that is text formatting tags, and these are the way to write the text. Next is font modifications. Font modifications are similar like in MS Word. When you want to change the size of the text, like from 8 pixels to 10 pixel, 10 to 12, or you want to change the style like from Arial to Time New Roman to Courier to Mona Lisa, and many more. Same way in HTML web pages we can also write text with the help of different fonts available, and we can also increase or decrease the size of the font by our choice, like from 1 to 7, or we can also apply colors to the fonts, like in MS Word we can write text in any color like red, green, blue, whatever. Similarly in HTML pages we have also the options of writing text in various font styles and with various colors. So to specify font, we web creators can also change the way text looks by using the tag font tag. So the font tag is the tag which help us to change the style of the text, either in terms of its size, color, or face. So the first tag is size tag. So how to apply size tag? Firstly is opening angle bracket, then the name of the tag, font, then size. Size act as a size and one of the attribute of font which help us to increase or decrease the size of the text. So here size and attribute, we have to specify the value of attribute. So here we are specifying 7. 7 means the text will appear as in a big size. So the smallest value of number is 1 and the biggest is 7. So here I am using two examples, for one of the largest and one for the minimum size. So opening angle bracket, font, size equals to 7. Always we have to specify the value of attribute in double quotes. Remember this point. Then the closing angle bracket, then we have to specify the text on which this size will apply. So here I am writing big, so the 7 size will apply on this text, that is called big. Then the closing tag, on the same side we are adding size 1 for small.
On the text small, we are adding size 1. So this will be the output. For big, it is written with size 7 and the small is written with size 1. Similarly, if we want to add the color in the text, so we have to use the attribute color and we have to specify the color name. To give the value of that particular attribute, that is color, we have various options. We can give values in terms of color name, in terms of RGB value, in terms of hexa value, you can say, in terms of HSL, that is hue, saturation and lightness. So we'll let you know each of one. This, suppose here I am writing simply font color equals to red, means I want to present my text in a red color. So here is the text, that is, this is red. Then the closing tag hash angle bracket / font, then closing angle bracket. So this is red, text will appear in a red color, as you can see. So we have to apply the color values. We have various types of values, like I already discussed about color name. Next is RGB value. RGB value means red, green, blue value, means ratio of the color of red, green and blue values. If I want to apply red color in terms of RGB value, I have to write like this. Every color, that means we have the only 3 primary colors, red, green and blue colors. 3 primary colors, that is red, green and the blue one. So to write, we only want to this the text to be represented in color style. So we are using RGB 255 0 and 0. The range of red, green and blue color is from range of RGB is from, every color is from 0 to 255. Similarly for this 0 to 255, similarly for this 0 to 255. So I have to write the red color, so I am using, here I am writing RGB 255. That means the intensity of red is full, no color of green and no color of blue. So I write like this, color equals to RGB this, right? In terms of hexacode is nothing but about hexadecimal code. So hexadecimal code starts with the prefix, that is hashtag, then it is written like this, RRGGBB. That means red ratio, green ratio and blue ratio. So we know that the value of hexadecimal lies from 0 to F. So for red, we know that the intensity of red will be full, so we write F, highest code of hexadecimal for red. Green, we don't want any green color, so the value becomes 00, and for blue again its value becomes 00. So for red, the code becomes hash FF0000. Okay, now the HSL value. HSL value specifies H for hue, S for saturation and L for lightness. Hue specifies the degree of color, whose value lies from 0 to 360 degree. Saturation specifies the grayness in the image, that is its value lies from 0 to 100%. Similarly, lightness, its value also lies from 0 to 100%. For saturation, 0 means no gray effect, 100 means full gray effect. Similarly, in lightness, 0 means black color, and 100 means whiteness of light
So we can write these types of, so for red, let me take the example of red for HSL. HSL for red will be, hue will be 0, then the saturation will be 100%, and lightness will be 50%. So this is the right code for writing red color of the text in terms of HSL, that is hue, saturation and lightness. Next is font face. Font face is like the way you want to write the style of your text, like Arial, Time New Roman, Courier, Mona Lisa. There are many more styles available. So how to write? We have to use the keyword face as attribute name, face, and its value means font name. Like here the example, font face equals to Arial. So this text, whatever written over there is representing Arial style. So the another example is font face equals to Time New Roman. So whatever the text written over here is representing Time New Roman. So this is the example of combining all the attributes of font in one go. So I am using font size 7, face Courier, color red for this text. जो ये टैग मैंने इसलिए लिखा कि इस टैग को कंबाइन करके हम बता सकते हैं कि हम एक ही टैग के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग भी यूज़ करते हैं. अलग अलग यूज़ करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और कोड हमारा क्या होगा, लेंथी बनेगा. अगर हम इसको डायरेक्टली एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं तो बाय कंबाइनिंग दिस, सो द आउटपुट विल बिकम्स लाइक दिस. दिस इज द टेक्स्ट दैट वाज रिटन इन रेड कलर, that was in red in colors, having size is 7 and style of is Courier. Okay, so here is the example, another example. Here I am writing simply opening tag for font size 7, and similarly at the same point I am using another tag, another same tag font for face attribute, that is face is Courier, for the text big and Courier. Next is I am closing the tag, that is which tag I am closing here, I am closing the last tag that I have written. So the last tag that I have written is font, so I am closing the font tag. Next I am writing just big, another text, then I am closing the tag that I have written at the first. Okay, so you can see the output. The big and the Courier will represent the size 7 because size 7 is applied to the whole text, but the font face big and Courier for this text from text here to here is representing Courier style, but the just big is not in Courier style. Why not? Because we have applied face Courier only to big and Courier up to this text only, not on this. So the style of this text will be by default, that is Arial. Okay, so this is all about font. Next is types of list. We have almost 3 types of list. One is unordered list, that is represent with the tag UL. The next is ordered list, that will represent with the OL tag, that is called ordered list. And the other one is definition list, that will represent with DL. We'll discuss each of them. Firstly we will discuss about the unordered list. To represent the text in the form of unordered list, we will use the tag UL tag with opening and closing angle bracket. We have write the name of the tag, that is UL. Then to write the elements of the list, we have to use the tag L1. L1 represents the list item. There is no limit on the list items. You can have from 1 to n number of times list, n number list. So here I am using item 1, item 2, item 3, item 4. 4 times I am using li tag to represent 4 items. Then closing tag, angle bracket, opening angle bracket, / UL, closing tag. So the output will represent like this. Because this is an unordered list, so no number like 1 item list, 2 item list represents here. Simply a dark circle, or you can say a point is represent to
distinguish between two different list items. We can change this style, like here it is like dot. We can change this style by using the attribute type. We can change the style like disk, circle, square. Like disk is by default circle, round, but not in dark, not filled with black color. Then the square. How to use the this attribute? Right angle bracket ul space type, attribute name equals to what? Circle. So then the list items li a, li b, li c, closing tag. Now you will notice here I am not ending li because li is not a single tag. You need not to apply the end tag. Okay, HTML5 has the feature that it will automatically end that particular item li. So the output of this will be like this: a, b, c. Okay, so in place of point here the circle will draw like this. Okay, next is ordered list. Ordered list means we have to list the items according to some sequence number or some alphabetic number. Also ordered list is also called number list because we have to mention some criteria from starting to ending point. So ordered list start with the tag ol, then the li means list item. We can arrange n number of items as list items, then the closing of ol tag. So the output will become like this: 1 is item 1, 2, 3, 4. If li is a, li2 is b, li's third element is c, and fourth element d, then it will look like 1 equals to a, 2 equals to b, 3 equals to c, d, 4 equals to d. Okay, now we also want to change this ordered list numbering, and suppose I want to write, instead of 1 I want to write a equals to a, b equals to b, c equals to c. Means I want to write the numbering in alphabetical order. So for this we have to arrange the types. So how to use like this? So starting of the tag space type, then the name of the type, like capital A means the numbering that I want to start my order list will be start from the capital A. Then the list items li high, li high, all. Okay, so I am using two list items, li high and all. Then I close that order list ol. So the output will be like this: a equals to high, b dot all. Okay, in number form. So there are various types from which you can declare the order list, like small Roman numbers. Small I represent the small Roman numbers, capital I represent the Roman numbers in capital form, small a represents the lowercase letters, capital A represents the order list in alphabetical order, capital alphabetical order, and 1 represents the number. Like this is the example for I. We are having I in Roman 1, 2, 3, 4 numbers. For in this, capital I represents the numbers in capital order. So 1 first item, second item, third item. For small a represent order list in A, B, C, D form. Capital A represent in the order list in the form of capital A, B, C, D. Similarly 1, 2, 3. Suppose if you want to start the order list from number 10, or you can say 12 onwards. So we have to mention another, we have to use another attribute that is called start attribute ol type equals to numbers 1, and so I want to start my numbering from 12, so I have to mention 12 with the attribute name start, then the number, like here, start then the number. So the output will be start from same code 12
dot high 13 dot all. So the numbering start from 12 only. Okay. नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट. ये टॉपिक डेफिनेशन लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एनआईसी एग्जाम्स में इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से समझे. तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? सपोज आप कोई एक लेटर लिख रहे हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो जिसमें आपको डेफिनेशंस गिवन है, तो आपने उसकी पहले डेफिनेशन की हमेशा उसका एक नाम होता है डेफिनेशन का, देन उसके आगे डिस्क्रिप्शन होती है. तो सिमिलरली उस टाइप को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेफिनेशन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं. तो डेफिनेशन लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? विद द टैग DL and where DT specifies the definition term. DL specifies definition list, DT specifies definition term, and DD specifies definition data. So DT specify, so here I am writing DT, that is list name 1 means first definition whose title is list name 1. DD represents the definition data. So this is where information about list name 1 would go is the description of this, that is list name 1. So closing tags of DD, then the DT. ये चीज़ हमेशा याद रखना कि DT टैग अगर आपने स्टार्ट किया है तो DT टैग के अंदर ही DT टैग आएगा. जब DT टैग खत्म हुआ then only DT टैग will end. ये नहीं है कि आपने DT टैग को ओपन किया और लिस्ट 1 के यहीं पे DT टैग एंटर कर दिया. हो तो जाएगा बट दिस डेफिनेशन विल नॉट कंटेन एनी डाटा डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. हमने ऐसे ही साथ नहीं कर देना, डिस्क्रिप्शन टर्म लिखने के बाद ही DT टैग को ख़त्म नहीं कर देना. डिस्क्रिप्शन टर्म के बाद हमें डिस्क्रिप्शन डाटा लिखना होगा. ठीक है. सो हेयर आई एम राइटिंग 2 टर्म्स, लिस्ट नेम 1 एंड लिस्ट नेम 2 and having 2 descriptions, so the output will become like this. List name 1 becomes my DT and this is where information goes become my DD. DT for 1, DD for 1. Similarly list name 2 becomes my DT2 and this description becomes my DD2. Right? Next is links. Links means connecting one web page to another web page or moving from one part of the page to the other part of the same page or the same document. So for links we are having anchor tag, that is also called A tag. A specifies anchor tag. The anchor tag is used to link one document to another or from one part of the document to another part of the same document. कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई एक साइट ओपन करते हो तो अगर आपने उसका दूसरा पेज पे ओपन जाना है तो आप एक बटन पे क्लिक करते हो या किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज को ओपन कर देता है या नेक्स्ट पेज पे आपको रीडायरेक्ट करता है. ये कैसे होता है? दिस विल ओनली हैपन्स विद द हेल्प ऑफ ए टैग, दैट इज कॉल्ड एंकर टैग. सो चलिए देखते हैं कि एंकर टैग हमने कैसे यूज़ करना है. सो दिस इज द ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, देन द टैग नेम, दैट इज ए. Here only A specifies anchor tag. So H reference मैंने पहले ही बताया means hypertext reference. Reference means किस लोकेशन के ऊपर हमने उस पर्टिकुलर यूज़र को या जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है हम उसको ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है. तो दिस विल रिप्रेजेंट द सोर्स कोड या फिर लोकेशन की किस लोकेशन के ऊपर हमने नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है अपने डाटा को. सो अब जो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे टेक्स्ट हम लिखेंगे इट विल रिप्रेजेंट्स द कि हमने एंकर टैग कहाँ पे अप्लाई करना है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टेक्स्ट वी हैव टू अप्लाई एंकर टैग, देन द क्लोजिंग ऑफ एंकर टैग और यू कैन से एंड टैग. क्लियर हो गया? लाइक अब हमने किसी भी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एंकर टैग जहाँ मेरे टेक्स्ट में मैंने लिखा है कहीं पे मैंने गूगल लिखा है, तो जहाँ पे मैंने गूगल लिखा है जब मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे, google.com के ऊपर लिखते. तो मैं इसके लिए कैसे लिख सकता हूँ इस कोड को? लाइक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट A देन H रेफरेंस इक्वल्स टू www.google.com. ये मैंने बता दिया कि जब भी मैं गूगल पे क्लिक करूँ तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाऊँ. ओके, अब ये लगाना कहाँ पे? तो यहाँ पे मोस्टली हम गूगल में क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं, तो मैंने लगा दिया ये सर्च बटन के ऊपर. ठीक है, और ये लगा दिया ये.
तो अब जहाँ पे भी मेरा सर्च कीवर्ड होगा वेब पेज में या ब्राउज़र विंडो में, जब मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को कहाँ पे ले जाएगा, google.com के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा। तो मेरे सामने क्या ब्राउज़र में कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, अगर ये तो थी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर या दूसरी वेबसाइट के ऊपर हमने रीडायरेक्ट करना, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेम पेज के ऊपर ही रीडायरेक्ट हो, तो वो कैसे करना है, चलिए उसके लिए देखते हैं। अगर नाउ दिस इज इंटर डॉक्यूमेंट लिंकिंग, आपस में ही एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंकिंग कैसे करवाना है। सो हेयर आई एम यूजिंग अ टैग, अगेन ए टैग एच रेफरेंस, हेयर आई एम यूजिंग हैश स्पोर्ट, आई एम writing prefix hash. Prefix hash represents we have need not to go any other web server or not need to go any other website, we have to go to within this page only. Hash represent we have to redirect only within this page. And next the sport represents the name of the location, name of location where we want to go. दैट मीन्स पॉइंट टू स्पॉट इन द डॉक्यूमेंट, उस पॉइंट को स्पॉट करेगा डॉक्यूमेंट के जहाँ पे वो स्पॉट होगा। ओके, देन द क्लोजिंग टैग ए टैग। अब जो हमने यहाँ पे स्पॉट के एक नाम दिया था, ठीक है, यहाँ पे हम स्पॉट पे जा रहे हैं ना, एच रेफरेंस हमने लोकेशन क्या दी है, स्पॉट। अब ये स्पॉट लोकेशन कैसे क्रिएट करनी है उसी पेज के ऊपर, अब उसके बारे में बात करेंगे। लाइक मीन्स डिफाइनिंग अ पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट, जिस पॉइंट डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने रीडायरेक्ट करवाने हैं विद इन दैट पेज, we have to mention or we have to highlight that particular page. So for A I have to use keyword attribute that is called name. We have to specify the name sport. So sport, then the text, this is called text, this is the name. Okay, then the closing tag. Suppose if I want to refer hashtag ABC, or so in name tag I have to write like this, a name equals to abc। लगाना किसके ऊपर है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया होम के ऊपर। तो जहाँ पे भी होम होगा, जब मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे को abc स्पोर्ट के ऊपर वो ले जाएगा। ओके, अब लास्ट आता है टाइप ऑफ लिंक्स में ईमेल। लाइक आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट टेक्स्ट पेज पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा शो होती है या यूज़ होती है। जब भी आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट अस पेज पे मोस्टली सबने अपना एड्रेस दिया होता है, फ़ोन नंबर्स दिए होते हैं और साथ में ईमेल एड्रेस दिया होता है। और ईमेल एड्रेस आपने देखा होगा कि वो ब्लू कलर में शो हो रही होती है और वहाँ पे उसके नीचे अंडरलाइन आ रहा होता है। जैसे ही आपने ईमेल के ऊपर अपना माउस को क्लिक करा तो वो क्या कर देता है, आपकी मेल विंडो ओपन कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वहाँ पे जो रेफरेंस लिंक लगा होता है वो मेल का लगा होता है, ताकि वो जो हम मेल करना चाह रहे हैं, जो क्लाइंट उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को यूज़ कर रहा होता है, ईमेल एड्रेस को यूज़ कर रहा है, तो वो डायरेक्टली उस ईमेल एड्रेस पे अपनी क्वेरी सेंड कर सके। तो उसके लिए कैसे करना होता है, ए एच रेफरेंस, हम टैग लगाएंगे ए एच रेफरेंस। तो यहाँ पे जो हमने कोड्स के अंदर लिखना है, वहाँ पे हमने क्या लिखना है, एक कीवर्ड ऐड हो रहा है यहाँ पे मेल टू, इसको एज इट इज़ लिखना है, देन कोलन। ठीक है, उसके बाद हमने एड्रेस देना है कि किस पर्सन को एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस कोई भी हो सकता है, लाइक tarun@gmail.com, राइट, या फिर abc@abc.com, कुछ भी, किसी भी होस्ट एड्रेस का ईमेल एड्रेस हो सकता है। देन ईमेल, जो टेक्स्ट आपने शो करवाना है ब्राउज़र के ऊपर, ईमेल someone@someone.host.com/। देन जब भी आप कोई यूज़र जो आपका पेज पे विजिट कर रहा होगा, अगर वो इस पॉइंट पे क्लिक करेगा, किस पॉइंट पे, इस टेक्स्ट पे ईमेल समवन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक मेल विंडो ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू वो आपको मेल कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक्स की। ग्राफिक मीन्स इंसर्टिंग इमेजेस टू द वेब पेजेस टू मेक योर वेबसाइट मोर इंटरेक्टिव। ओके, टेक्स्ट, ये हेयर बाय है ना कि हम जो टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो सकती है इंस्टेड ऑफ सिंपल राइटिंग। सो ग्राफिक्स हमें यही फीचर्स प्रोवाइड करता है कि हम अपने वेब पेजेस में इमेजेस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो है इमेज टैग, दैट इज़ कॉल्ड IMG टैग। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए। कहाँ पे, अपने वेब पेज के ऊपर। इमेज आपकी कहीं पे भी बड़ी हो सकती है, वेब सर्वर पे हो सकती है या वो किसी और वेबसाइट की हो सकती है, बट द वे इज आपने जो इमेज है
अगर वो कहीं और लोकेशन पे पड़ी है, उसको वहाँ से अपने पेज पे कैसे रीडायरेक्ट करना है या कैसे आपने पेज पे लोड करवाना है, दिस इज व्हाट अबाउट हाउ टू अप्लाई इमेज। ओके, तो ये कैसे करना है, हमने सबसे पहले लेना है हमने इमेज टैग, देन एसआरसी। एसआरसी स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ अ इमेज, कि इमेज का हमारा सोर्स क्या होगा। सोर्स मीन्स कहाँ से हमने इमेज लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने डायरेक्ट एक वेबसाइट का लिंक दिया है जहाँ पे वो ये मेरी जो fish.gif इमेज पड़ी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को जो एक वेबसाइट के ऊपर है वहाँ से डायरेक्टली अपने पेज के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगेन इट इज़ अ सिंगुलर टैग, नीड नॉट टू close that particular tag. Okay, there are some attributes that are used along with this image tag, that is first one is alt means alternate text. ओके, ये कब यूज़ होता है मैं देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। कई बार आपने वेब पेज ओपन करा तो उसमें क्या होता है, वेब पेज के जो आपका वर्डिंग्स लिखी होती है, लाइक जो टेक्स्ट लिखा होता है वो तो आपको शो हो जाता है, बट वहाँ पे जो इमेजेस होती हैं वो आपको शो नहीं हो पाती हैं। वो इमेजेस क्यों नहीं शो हो पाती हैं, मे बी उनकी कुछ फाइल्स मिसिंग होती हैं, या फिर वो कई बार आपके इंटरनेट की स्पीड कम होती है, तो वो प्रॉपर इमेजेस क्या होती है, साइज उनका बड़ा होता है, वो लोड नहीं हो पाती है। तो इन प्लेस ऑफ इमेजेस वहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट लिखा आ जाता है, लाइक img_1001.jpg फाइल मिसिंग या समथिंग, कुछ भी लिखा हो सकता है, या सिंपली उसका इमेज का नाम ही होता है। ये क्यों आता है और ये कैसे आता है, ये आता है क्योंकि इमेज लोड नहीं हुई है। तो हमारे HTML5 फीचर देता है कि अगर समहाउ आपकी इमेज लोड नहीं हो पा रही है तो इन प्लेस ऑफ इमेज आप कुछ टेक्स्ट को एज ए मैसेज शो करवा सकते हो, किसको, टू द क्लाइंट और टू द यूज़र। तो उसके लिए हमें एट्रीब्यूट है हमारे पास ऑल्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या वहाँ पे आएगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। कब यूज़ होगी डिस्क्रिप्शन, सिर्फ तभी डिस्क्रिप्शन यूज़ होगी जब आपकी इमेज लोड नहीं होगी। इंसर्ट देखिए, इंसर्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफिक फॉर दोज हु आर यूजिंग ब्राउजर्स दैट कैन नॉट प्रोसेस इमेज। उन ब्राउजर्स के लिए ही ये डिस्क्रिप्शन शो होगी जहाँ पे आपकी इमेज समहाउ प्रोसेस नहीं हो पा रही है। ओके, नेक्स्ट इज विड्थ एंड हाइट। हमारे पास दो अदर एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ एंड हाइट, जो कि आपके साइज़ को, इमेज के साइज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। हम विड्थ एंड हाइट को दो तरीके से इनपुट दे सकते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, सिमिलरली हाइट एंड विड्थ को हम इन टर्म्स ऑफ पिक्सल एंड परसेंटेज हाईलाइट। नेक्स्ट इज बॉर्डर। कई बार आपने देखा होगा कि जो आप इमेजेस लोड करते हो उसके राउंड ऑफ एक बॉर्डर सा अप्लाई हुआ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इमेज टैग यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट को नहीं स्पेसिफाई किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो बॉर्डर ही शो करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इमेजेस के अराउंड बॉर्डर आए तो हम विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं बाय गिविंग द बॉर्डर लेंथ इन पिक्सल्स। ओके, नेक्स्ट इज अलाइन। अलाइन इज द वन ऑफ द मेजर attribute of graphics, or you can say one of the important one. Why it is important? Because we have to apply image or we have to insert image in some specific portion of the page or specific part of the page. With the help of align button we can easily do the alignment of the image at a particular position. How? We have these 5 attributes, 5 values of align available, like top, middle, bottom, left and right. So if we want to apply want to insert image at the top of the page, so we will align at the top, bottom. If we want to get to the middle, then we will use the align middle. Example we will see in next slide like this. So here, suppose this is my browser window from here to here. Firstly I want to apply image at the top, so I am using that reference tag img source from where the image will select, or from get the image. Then here I am using the keyword, using the attribute align equals to top. So means the picture that will be loaded from this particular location comes at the top of the window. So comes the picture at the top of the window. All about fish is a text that represent along with the image. तो ये जनरल आपका टेक्स्ट है जो शो हो रहा है साथ में. सेकेंडली, इन सेकेंड केस
I want to align the picture at the middle. So this is the screen suppose. So the picture is at the middle. This is the top section. This is the bottom section. So this is the middle section. So the picture comes out in middle part. Okay. Now if we want to add the bottom, so the picture comes at the bottom. Right. Now the remaining two, left and right, again suppose this is an image, this is an screen window. If we want to align left, so the picture comes out to mean left side of the screen, and if we want to right, then the picture comes out on the right side. Next comes out to be the table tags. Tables tags, this is the very important question, or you can say the topic that comes for NIC exams और एनी अदर एग्ज़ाम्स. इसके ऊपर मेनली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, टेबल्स में से. आपको कोई एग्जांपल हो, जो भी मैंने पहले लास्ट टॉपिक में एनालिसिस में बताया था ना कि कोई बार क्वेश्चन में एग्जांपल्स आ जाते हैं, तो मोस्टली एग्जांपल्स इसी टॉपिक में से आती हैं टेबल्स में. तो टेबल्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख सकिए. तो टेबल टैग कभी भी अब टेबल्स क्या होता है, लाइक रोज एंड कॉलम्स. कुछ डाटा अगर हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वेब पेजेस में, लाइक अगर जैसे हम एक्सेल में बात करते हैं, ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ टेबल्स टैग्स हम अपने वेब पेजेस के ऊपर भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से टैग्स अवेलेबल है. सबसे पहले है टेबल टैग, ठीक है, जिसके आगे 4 सब एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हो आप 4 सब टैग्स हैं, जिनकी हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट इज टेबल रो. अब आपको पता है कि टेबल क्या है. टेबल इज व्हाट हैविंग combination of rows and columns. Okay, so for rows we have tag tr tag, and for columns we have tag td, or you can say td tag is also called table data. Okay, then the tag we are having tag table header. Table header is a tag that is used to highlight the headings of the table, headings of the columns of the table. Then we have a caption tag, caption, that is used to give the caption to the table. How to use these all the tags we will discuss in next slide. So here firstly this is the example of table tags, how to use. Firstly we have to start the angle bracket, ठीक है, then the table tag name, that is called table. Here I am applying border equals to 1. Border is one of the attribute of table tag. So I am here applying a border whose size is 1. Okay, then the tr specifies row of a table, so I am creating one row. So suppose this is the row that I am creating. Okay, so in row we have to apply insert columns. So ts specifies column 1 as header. सो यहाँ पे CL1H पूरा नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट लिख रहा हूँ. कॉलम C स्पेसिफाई कॉलम 1 मीन्स 1 हेडर फॉर H. ओके, एंड सेकेंड कॉलम इज CL2 C2H. ओके, सो now I am saying that table rows and table columns. Every row is having multiple columns. We can add multiple th1. Whatever you want to give the length of the columns you can give. There is no such restrictions, but the point is you have to manage the size of the screen. Okay, next is I am adding another row, that is second row. From here this is for first row, this is for second row. Here I am writing again 2 columns td, r1 c1 r2 c2 or r1 c2 सॉरी. ओके, रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, तो ये ऐसे बन गया. ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी हैव एडिंग अनदर रो, थर्ड रो, r2 c1 r2 c2. okay, so like let us see the output like this. फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, कॉलम 1 हेडर कॉलम 2 हेडर. अब देखिए कॉलम 1 हेडर एंड कॉलम 2 हेडर आर हाईलाइटेड इन बोल्ड स्टाइल. व्हाई? बिकॉज हेयर इन दिस रो we have used the
th tag, that is called table header tag instead of td tag. ठीक है, but in row 2 and row 3, this is row 1, 2 and 3, in row 2 and row 3 we are using td tags, so it is written in simple language: row 1 column 1, row 1 column 2, row 2 column 1, row 2 column. So this is the tables. So following are some of the attributes of table tags. First one is bg color. Bg means background color. If you want to apply the background colors to the table, you can use bg color as attribute, like table bg color equals to red, then your dr and so on. Okay, so the table will be, the background of table will be in red color. So some browsers support background colors in a table. Mostly कुछ ब्राउजर्स ऐसे हैं जो इनको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कलर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, बट ऑलमोस्ट मोस्टली करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज विड्थ. You can specify the table width as an absolute number of pixels or a percentage of the document width. You can set the width of for the table cells as well. Like width means आपका साइज कितना होगा टेबल का, like इतना साइज होगा या इतना साइज होगा, उसकी width दे सकते हो. बॉर्डर, like मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ली थी जिसमें मैंने लिखा था बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 था फर्स्ट एग्जांपल में ही. ठीक है, तो हम अपनी तरफ से बॉर्डर का साइज अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन चूज अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द बॉर्डर विड्थ विच स्पेसिफाई द बॉर्डर इन पिक्सल. नेक्स्ट द टॉपिक कम्स आउट टू बी सेल स्पेसिंग. सेल स्पेसिंग, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, इन दोनों के ऊपर पेपर में क्वेश्चंस बहुत बार आ सकते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गेट वगैरह में भी देखा होगा क्या आपने, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें भी कंप्यूटर का सेक्शन आता है तो उसमें से क्वेश्चंस मोस्टली आ ही जाता है. तो सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग रिप्रेजेंट्स द स्पेस बिटवीन टू सेल्स एंड इज स्पेसिफाइड इन फिगर्स. मीन्स क्या कह रहे हैं हम, अगर सपोज करो हमारा टेबल का है कि ये सेल है और एक ये सेल है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं हम सेल स्पेसिंग. ठीक है, इस ये रिप्रेजेंट कैसे होती है, इन टर्म्स ऑफ पिक्सल रिप्रेजेंट होती है. राइट. नेक्स्ट इज सेल पैडिंग. सेल पैडिंग क्या होती है? इट इज द स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल कंटेंट एंड इज स्पेसिफाइड इन फिगर्स, इन पिक्सल्स. सो लेट मी टेल अबाउट द सपोज दिस इज अ सेल and this is the border, like blue color surrounding is the border. Here I am writing A. So the cell padding is what? The space from border to the content of that cell, like from this point to this point is the cell padding, you can say CP. Okay, border से लेके जहाँ पे आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक की जो स्पेस होगी दैट विल रिप्रेजेंट द स्पेस पैडिंग. दिस इज फ्रॉम बोथ साइड, दैट इज फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. ओके, देन द अलाइन मीन्स फ्रॉम हाउ टू अलाइन योर टेबल, लाइक एट विच पार्ट ऑफ द स्क्रीन द टेबल विल present, either from left side, right side or at the center of the screen. So we have three values of this attribute, align attribute: left, right or center. Okay, next is background image. You can also apply background image which will be used in, start using in from IE 3.0 to above. Table caption. A table caption allow you to display a line of text that will appear centered above or below the table. Means आपने टेबल का बताना है कि टेबल मेरा जो आपने अपने ब्राउज़र में लगाया हुआ उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, तो वो विद हेल्प ऑफ टेबल कैप्शन हम दे सकते हैं. सो देखिए यहाँ पे कैप्शन अलाइन इक्वल्स टू बॉटम, तो मीन्स यहाँ पे जो बॉटम होगा, बॉटम पे ये कैप्शन आएगी, दैट इज़ लेबल फॉर माई टेबल.
तो ये लेबल फॉर्मेट टेबल क्या है, एक टेक्स्ट है जिसको बोल सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन है, या फिर ये बोल सकते हैं आप, ये मैंने आपने कैप्शन दी है जो कि शो होगी एट द बॉटम ऑफ द टेबल। द कैप्शन एलिमेंट हैज़ वन एट्रीब्यूट अलाइन दैट कैन बी आइदर टॉप और बॉटम। ओके, कैप्शन की जो अलाइन है इसकी वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, या तो बॉटम हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, टॉप हो सकती है। इसके अलावा लेफ्ट राइट नहीं हो सकती, लेफ्ट राइट सेंटर यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है, बॉटम एंड टॉप। नेक्स्ट इज टेबल हेडर। टेबल हेडर, टेबल डाटा सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय टीडी एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी डाटा सेल्स है या आप कह सकते हो कॉलम्स है वो किसके साथ रिप्रेजेंट होते हैं, टीडी के साथ होते हैं। सेल्स कैन आल्सो बी टीएच। टीएच मीन्स टेबल हेडर। ठीक है, एलिमेंट्स विच रिजल्ट्स इन द कंटेंट ऑफ द टेबल हेडर सेल्स अपीयरिंग सेंटर्ड एंड इन द बोल्ड टेक्स्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया था। अब आती है बात टेबल डाटा एंड टेबल हेडर जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनके फर्दर एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगेन दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। लाइक अगर आप एमएस एक्सेल की बात करें या फिर एमएस वर्ड की बात करें, वहाँ पे अगर आप टेबल बनाते हो तो आपके पास एक मर्ज की ऑप्शन आती है, मीन्स आप किन्हीं टू रोज या किन्हीं टू कॉलम्स को मर्ज कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम HTML की बात करें, अगर हमने कॉलम्स को मर्ज करना है तो हमारे पास कॉल स्पैम है, अगर रो को मर्ज करना है तो रो स्पैम है। ठीक है, एट्रीब्यूट रो स्पैम है। तो कॉल स्पैन स्पेसिफाई हाउ मेनी सेल कॉलम्स ऑफ द टेबल दिस सेल कुड स्पैन। स्पैन मीन्स मर्ज कर सकते हैं। सिमिलरली रो स्पैन मीन्स हाउ मेनी सेल्स रोज ऑफ द टेबल दिस सेल कुड स्पैन। अभी हम नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है ए अलाइन मीन्स सेल डाटा कैन हैव लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट। जो आप एक सेल के अंदर डाटा लिखोगे वो क्या आपको मिडिल में शो हो या लेफ्ट साइड से शो हो ज़्यादा या फिर राइट साइड से ज़्यादा शो हो। वी अलाइन मीन्स वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन मीन्स कि टॉप से वो कितना हो, मिडल से कितना हो या बॉटम है। मीन्स जो आपका बॉर्डर लगा होगा आपके अराउंड सराउंडिंग में सेल के, जो आपका टेक्स्ट हो वो टॉप से स्टार्ट हो या बॉटम से स्टार्ट हो या फिर वो मिडल में शो हो। नेक्स्ट इज विड्थ, सेल की विड्थ कितनी हो, सेल की हाइट की हो कितनी हो, ये हम नंबर्स में या फिर परसेंटेज में इसको शो कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक टेबल कोड। फर्स्ट इज आई एम designing one 3x3 table. So here the table tag with border 1 and width 50 cm. 50 cm means जो आपकी स्क्रीन है उसका 50% पार्ट ही वो कवर करेगा, किसके लिए, टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, देन मैंने लगाया कैप्शन। कैप्शन में दिया मैंने स्पेयर पार्ट्स, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है आउटपुट में, देखिए दिस इज द कैप्शन। इसका साइज H1 लिया है क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड में शो हो। ठीक है, देन मैंने लिया है, अब क्या करना है, रोज बनानी है। टेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले रो होनी चाहिए, रो के अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रो लिया है TR मीन्स टेबल रो। जो फर्स्ट रो होगी वो मैंने कंसिडर की है, वो मेरे क्या है, हेडर रो है। ठीक है, जिसमें भी कि हर एक कॉलम का क्या होगा, हेडर होगा। तो TH वहाँ पे लिखा, पहले मैंने लिया स्टॉक नंबर, देन लिया है डिस्क्रिप्शन, देन लिया है लिस्ट प्राइस। स्टॉक नंबर, डिस्क्रिप्शन, लिस्ट प्राइस। तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो सेंटर में आ रहा है और ये बोल्ड स्टाइल में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रो लिए मैंने टीडी मैंने लिखा है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या लिया है, यहाँ पे मैं BG कलर स्पेसिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि बैकग्राउंड कलर भी कैसे शो होना है। तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू क्या ली है, रेड ली है, और उसके अंदर उसका डाटा लिखा है यहाँ पे 3476 पोस्ट करो, उसका कोड है उस आर्टिकल का या स्टॉक नंबर है। ठीक है, और TD सेकेंड कॉलम में मैं क्या लिया, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिया है, जो ये पर्टिकुलर स्टॉक नंबर है उसकी ये डिस्क्रिप्शन, दैट इज 676 mm सॉकेट है ये, और उसका प्राइस क्या है 45 रुपीज़ है। तो तीनों में डाटा ये रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे सेकंड रो में पहले मैंने TD फर्स्ट कॉलम का डाटा लिया, फिर सेकंड कॉलम का डाटा को क्या किया है, जो उसका फ़ॉन्ट कलर क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो अब आप देखोगे जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है इस कॉलम में, दैट वाज इन ब्लू इन कलर। ओके, तो नेक्स्ट कॉलम लिया लास्ट में जो एज इट इज़ लिया, सिंपल, नो इसमें कोई एडिशनल एट्रीब्यूट मैंने ऐड नहीं किया है। तो जब ये टेबल को मैंने कंपाइल करा तो उसकी आउटपुट ये शो हो रही है, जिसमें कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या होगा, उसके बैकग्राउंड क्या है, रेड आ रही है। थर्ड रो के सेकंड कॉलम के में जो टेक्स्ट है वो ब्लू इन कलर है, और जो टेबल की फर्स्ट रो होगी वो क्या होगी, हेडर रो होगी, जिसमें कि उसका जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या होगा,
मिडल में होगा और बोल्ड में होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सेल पैडिंग की एंड रो कॉलम एंड कॉलम स्पैन में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक टेबल लिया जिसमें बॉर्डर है 1, जिसकी सेल पैडिंग है 2। मीन्स जो सेल पैडिंग का क्या मतलब था कि जो उसमें टेक्स्ट लिखा होगा वो 2 पिक्सल्स कह सकते हो कि 2 पिक्सल्स फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द टॉप लेफ्ट एंड राइट से 2 पिक्सल साइड पे वो जाके स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हमने रो लिया है TR रो, फर्स्ट रो टेबल रो, जिसमें क्या है कॉलम 1 हेडर है एंड कॉलम 2 हेडर है। ठीक है, नेक्स्ट रो लिया हमने TR, जिसमें क्या किया हमने, यहाँ पे लिखो जो टेबल का TAD मीन्स टेबल डाटा, यू कैन से टेबल कॉलम। जो एक रो है उसके अंदर जो कॉलम है वो क्या लिखा है हमने, कॉल स्पैन 2। मीन्स क्या करेगा, कॉल स्पैन 2 मीन्स ये 2 कॉलम्स को मर्ज कर रहा है, एक ही टेबल बना, एक ही कॉलम बन रहा है TD, जो क्या कर रहा है 2 कॉलम्स को मर्ज कर रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो ये मेरा फुल टेबल इतनी ऐसे होएगा। फर्स्ट टेबल क्या होगा मेरा, TH होगा, जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से चूज करके C1 C2 लिख दिया। ये आपको इसलिए लिखा है, कलर चेंज करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या है, मेरा टेबल हेडर है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेबल रो। अब टेबल रो यहाँ पे देखिए TD है, TD स्टार्ट हुआ, वो क्या कर रहा है कॉल स्पैन 2 कर रहा है। मीन्स जो हमारी सेकंड रो होगी वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगी, मर्ज होगी, किसको, कॉलम 1 को एंड कॉलम 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रो 1 कॉलम 1। नेक्स्ट है अगेन TR रो है, यहाँ पे क्या रो स्पैम 2। मीन्स ये क्या कर रहा है, 2 रोज को कंबाइन कर रहा है। तो सपोज करो ये थोड़ा सा और बड़ा टेबल है, तो यहाँ पे जो कॉलम 1 है वो क्या कर रहा है, 2 कॉलम्स को क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। मैं मर्ज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइक मैंने ये मर्ज कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज अब इसी रो के अंदर यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये वाली लाइन है, ये वाली टेबल रो है, इसको लाइन को जब मैंने TD कॉल स्पैम 2 किया, वहाँ पे लिखा रो 2 कॉलम 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R2C1 और TD ख़त्म करा, फर्स्ट टेबल डाटा ख़त्म किया और साथ ही मैंने सेकंड डाटा टेबल शुरू कर दिया, जिसमें क्या है TD रो 2 कॉलम 2। तो यहाँ में रो 2 R2C2। अब ये ख़त्म हो गई, यहाँ पे ये जो TR यहाँ पे स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे जाके ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल लिया, थर्ड रो ली, TR TD लिखा, जिसमें रो 3 कॉलम 2। तो जो रो 3 कॉलम 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या किया, टेबल टैब को एंड करा। तो देखिए फर्स्ट रो क्या थी, कॉम्बिनेशन था किसका, कॉलम 1 का एंड कॉलम 2 का। जो सेकंड रो थी वो क्या कर रही थी, सेकंड रो को मर्ज कर रही थी इन कॉलम 1। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या होगी, आपस में मर्ज होगी। एक्चुअल में वो कैसे लाइन स्टार्ट होनी थी, ऐसे स्टार्ट होनी थी, बट यहाँ पे क्या किया, रो 1 का फर्स्ट कॉलम एंड रो 2 का रो 2 एंड रो 3 का कॉलम क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ पे वो मर्ज नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेबल हेडर्स। So the special things to be note in tables, TD, TH and TR should always have end tags। हमें इनके end tags को हमेशा साथ ही साथ में लिखना है कि यहाँ पे नहीं सोचना कि HTML5 वो ऑटोमेटिकली उनको क्लोज कर देगा, कर तो वो क्लोज देगा ही, बट इसमें क्या होगा, आपकी आउटपुट चेंज हो जाएगी। ओके, although the end tags are formally optional, many browsers will mess up the formatting of the tables if you omit the end tags. Okay, in particular you should always use end tags if you have a table within a table. Okay, in this situation the table parser get hopelessly confused if you don't close your TH, TD and TR elements. A default table has no border। मैंने पहले ही बताया था, जो आप डायरेक्टली अगर टेबल टैग यूज़ कर रहे हो उसमें बॉर्डर की ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो उस पर्टिकुलर टेबल का कोई बॉर्डर नहीं होगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स आर ड्रॉन विदाउट बॉर्डर लाइन्स, यू नीड टू बॉर्डर एट्रीब्यूट्स to draw the lines. By default a table is a flush with the left margin।
मीन्स जो भी कंटेंट आप टेबल के अंदर लिखोगे वो ऑटोमेटिकली सारा लेफ्ट साइड पे ही अलाइन होएगा। अगर आपने इसको अलाइन करना है तो मैंने बताया था कि हमारे पास अलाइन के ऑप्शन है, अलाइन लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, तो आप उनमें से कोई भी यूज़ करके इसको अलाइन कर सकते हो। सो हियर कम्स द लास्ट, दैट इज़ द आउटपुट क्वेश्चन। लाइक मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेपर में कैसे आउटपुट क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन गिवन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आपको ये एक सिनेरियो गिवन है पूरा, तो आपने बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। ऑब्वियसली पेपर में आपके पास तो गिवन होगा कि आपने टेबल्स बना के ABCD सेक्शन गिवन होगा, बट अभी यहाँ पे आपके पास नहीं गिवन है, तो आपने ये बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टेबल की बॉर्डर की विड्थ क्या है, उसने 750 पिक्सल्स रखी है। ठीक है, तो वहाँ पे उसने नेक्स्ट क्या कर रहा है, TR, फर्स्ट रो लेगा TR, जिसमें क्या किया उसने, कॉल स्पैम 4 लिया है। कॉल स्पैम 4 से हमें पता लग गया कि जो हमारे पास टेबल बनेगा उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे, और वो फर्स्ट रो में क्या कर रहा है, चारों कॉलम्स को क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, और उनकी अलाइनमेंट क्या दे रहा है, सेंटर दे रहा है, और मैसेज क्या शो करवा रहा है, पेज बैनर मैसेज शो करवा रहा है, पेज बैनर। ठीक है, और उसने TR टैग को एंड कर दिया। मीन्स एक रो होगी हमारी जो फर्स्ट रो होगी, उसके अंदर 4 कॉलम्स तो वैसे होंगे, और उसने बट फर्स्ट रो में क्या किया है, चारों कॉलम्स को मर्ज कर दिया है, और उनको अलाइन क्या कर दिया है, उनके जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या कर दी है, उसने सेंटर रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने मोस्टली क्या करते हैं हम, अगर जब भी हम टेबल बनाते हैं जो उसकी फर्स्ट रो होती है उसको हम TD की जगह पे TH यूज़ करते हैं, इसमें टेबल हेडर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, TH नहीं यूज़ है, डायरेक्टली TD दिया है, बट वहाँ पे उसने बताया कि कॉल स्पैन है 4 का, एंड टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे अलाइन है, सेंटर में अलाइन है। ओके, तो नेक्स्ट रो बनाई हमने यहाँ पे, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो में उसने क्या लिया है, TD फर्स्ट कॉलम लिया, जिसमें क्या बताया उसने, रो स्पैम 2। रो स्पैम 2 मीन्स वो क्या कर रहा है, जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम होगा वो क्या होगा, सेकंड रो एंड थर्ड रो का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जिसकी विड्थ क्या होगी, 25% होगी, किसकी, टेबल की, पूरे टेबल में से। ठीक है, जो 750 विड्थ का टेबल होगा उसका 25% जो होगा हिस्सा, वो कहाँ पे होगा, हमारा फर्स्ट कॉलम में होगा। ओके, नेक्स्ट वो सेकंड कॉलम दे रहा है TD कॉल स्पैन 2, मीन जो अब सेकंड कॉलम ले रहा है वो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है, 2 एंड थर्ड कॉलम का। कॉल स्पैम 2 बोला है ना इसने, कॉल स्पैम 2 मीन्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का कॉम्बिनेशन, मर्जिंग ऑफ 2 कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे वो फर्स्ट को नहीं मर्ज कर रहा, फर्स्ट को तो उसने TD टैग यहाँ पे लगा के यहाँ पे खत्म कर दिया, फर्स्ट कॉलम तो डिफाइन कर दिया, अब यहाँ पे वो क्या डिफाइन कर रहा है, सेकंड एंड थर्ड कॉलम को क्या कर रहा है, वो क्लब कर रहा है एज ए 2 और 3 कॉलम में से, लास्ट में ले रहा है वो TD। अब यहाँ पे क्या ले रहा है, कॉल स्पैन 2 मीन्स जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो भी क्या होगा आपका, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कॉलम 2 ऑफ रो 2, सॉरी कॉलम 4 ऑफ रो 2 एंड कॉलम 4 ऑफ रो 3 का क्या होगा, मर्जिंग में होगा, वो भी कितना लेगा, 25%। तो देखिए हमारे पास टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो सपोज करो ये हमारा टेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन क्या होगी, ये तो हमारी बन गई बैनर वाली लाइन। ठीक है, अब जो सेकंड रो बना रहा है, सपोज करो जो ये वाली रो बना रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो रो बना रहा है, जो वो क्या ले रहा है, इस टेबल का 50% फॉर फर्स्ट कॉलम, तो 50% सपोज करो अगर इतना आता है, 25% सॉरी, तो यहाँ पे आ रहा है, और तो जो बचा क्या, ये 75% बच गया पूरा। तो लास्ट वाला कॉलम देखिए यहाँ पे भी वो विड्थ कितनी ले रहा है, 25%, तो सपोज करो लास्ट वाले कॉलम की विड्थ भी क्या होगी, 25% होगी। बट जो बचे कितने, नीचे वाला पार्ट 50% पार्ट बचा, उसमें उसने क्या कहता है, 2 टेबल्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक्चुअल में कैसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, लाइन आनी थी, बट यहाँ पे लाइन नहीं आई है। क्यों नहीं लाइन आई है, क्योंकि उसने क्या करा हुआ है, यहाँ पे कॉल स्पैम बोला हुआ है, हमें क्या बोला हुआ है, कॉल स्पैम बोला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड लाइन। बट यहाँ पे देखो उसने क्या किया था, जो रो हमारा टेबल TD1 है, TD1 मीन्स जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, रो स्पैम 2 है, तो मीन्स ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, और ऐसे ही सिमिलरली जो फोर्थ कॉलम है वो भी हमारा क्या है, मर्ज है। तो लास्ट लाइन उसने लिखी है TR, उसकी भी विड्थ क्या दी है, फर्स्ट कॉलम की 25% दी है, जिसमें लिखा है उसने न्यूज़ कॉलम 1 दी है, देन सेकंड कॉलम लिया उसने TD अगेन फिर 25% विड्थ, जहाँ पे लिखा है उसने कॉलम 2। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, TR टैग को खत्म कर दिया। तो आउटपुट कैसे आएगी, तो देखिए ये
पहले क्या आ गया हमारे पास, बैनर आ गया, दैट वाज कॉल स्पैन 4, ठीक है, कॉल स्पैन 4 था यहाँ पे क्या था, रो स्पैन 2, यहाँ पे भी था रो स्पैन 2, यहाँ पे क्या था, कॉल स्पैन 2, दिस इज द आउटपुट ऑफ द particular process. So guys, this is all about the video of introduction of HTML. अभी हमने HTML के टेबल्स पार्ट तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रेम्स के बारे में एंड फॉर्म्स के बारे में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट HTML। अगर आप वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।